बोल रहा मेरे को भी थोड़ा देना, मेरे को भी भूख लग रहा है। সেই অপবিত্র পুত্র কହୁଛି মতে ମଧ୍ୟ ଟିକେ দে, মতে ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦେ ବୋଲି ଘୁଷୁରିକୁ କହୁଛି ମତେ ଭୋକ ଲାଗୁଅଛି ବୋଲି। तो सुअर क्या बोला पता है? ତେବେ ଘୁଷୁରି କଣ କହୁଛି ଜାଣୁଛନ୍ତି? मैं नहीं देगा तेरे को, ମୁଁ ତତେ ଦେବି ନାହିଁ। मेरे को ही 2-3 दिन में एक बार मिल रहा है ମତେ ହିଁ 2-3 ଦିନକୁ ଥରେ ମିଳୁଅଛି, और उसमें भी तू मेरे से मांग रहा है। ସେ ଭିତରୁ ତୁମେ ମତେ ମାଗୁଅଛ। अब आप सोच के देखिए ये उड़ाऊ पुत्र का जीवन कितना गंदा हो गया। ଏବେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଅପବିତ୍ର ପୁତ୍ରର ଜୀବନ କିପରି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଇଗଲା। जिस दिन आप बाप से अलग होंगे, ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବେ, शैतान को पूरा अवसर हो जाएगा आपके जीवन को दरिद्र वाला जीवन में लेकर आने के लिए। ସେତେବେଳେ ଶୈତାନକୁ ଏପରି ସୁଯୋଗ ମିଳିଯିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରି ସମସ୍ତ ଠାରୁ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିବା ନିମନ୍ତେ। अभी इसका जीवन दरिद्र से भी गया बीता हो गया। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଜୀବନ ଏପରି ହେଇଗଲା ଯେ କଷ୍ଟମୟ ଜୀବନ ହେଇଗଲା। आपके पास से निकला था, सुंदर बन के निकला था। ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। अभी ये सुअर का नौकरी कर रहा है। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଘୁଷୁରିର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। वो दिख रहा कैसा होगा? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କିପରି ଦେଖାଯାଉଛି? लंबा लंबा बाल, सर का बाल उजला हुआ, ତାର ଚୁଟି ସବୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଛି। शरीर में भी कपड़ा था कि नहीं था नहीं पता, बाइबल बोलता है। ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଥିଲା କି ନାହିଁ କି ବାଇବଲ କିଛି କୁହେ ନାହିଁ। सुअर का बदबू इसके शरीर के अंदर आ रहा है। ଘୁଷୁରିର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ତାର ଶରୀରରୁ ଆସୁଅଛି। अभी इसको खाने के लिए भी नहीं है। ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। एक डायलॉग है, एक कहावत है इस दुनिया का, ଗୋଟେ ଏପରି ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ଦୁନିଆରେ, है ना, सुख के सब साथी दुख में न कोई। ଆଉ ସୁଖ ସମୟର ସାଥୀ ଦୁଃଖର ସମୟରେ କେହି ନ ରହନ୍ତି। सुख में सब लोग साथी बन के रहेंगे, ସୁଖ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ସାଥୀ ରୁହନ୍ତି। क्योंकि दोनों हाथ में आपका पैसा है। ଯେହେତୁ ତା ହାତରେ ଦୁଇଟି ହାତରେ ଟଙ୍କା ଅଛି, अब जब ये पैसा खत्म हो जाएगा, ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ସରିଯିବ सब लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे। ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକରି ଚାଲିଯିବେ। अभी ये उड़ाऊ पुत्र का परिस्थिति भी वैसा हो गया। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପବିତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହେଇଗଲା। हालेलुया, ହାଲେଲୁୟା, हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। अब एक दिन क्या हुआ बोलने से, ଗୋଟେ ଦିନ କଣ ହେଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? अंदर का चूहा लोग हड़ताल कर करके परेशान हो गए। ଆଉ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମୂଷା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ପେଟ ଭିତରେ ଥିଲା ମୂଷା ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରି କରି ହଇରାଣ ହେଇଗଲେ। खाना नहीं मिल रहा था, स्ट्राइक किए अंदर वाले लोग, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଖାଦ୍ୟ ନ ମିଳିଲାରୁ ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲେ। और उसका पेट का चूहा काटने लगा इसको, ଆଉ ପେଟର ମୂଷା ତାକୁ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। और भूख बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। ଆଉ ଭୋକକୁ ସେ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ। और जब भूख बर्दाश्त नहीं कर पाया, ଆଉ ଭୋକକୁ ସେ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ। तब इसको अपना बाप का याद आया। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ପଥର ଆଣିଦେବେ କି ଆଜ୍ଞା? आज की रात एक प्रार्थना मैं करूंगा। ଆଜିର ରାତ୍ରିରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। प्रभु, ऐसा कई लोगों के जीवन में वो चूहा पेट में काटना चाहिए प्रभु। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନର ପେଟରେ ସେ ମୂଷା କାମୁଡ଼ିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁ। अगर ये काटेगा, कम से कम बाप का याद तो जरूर आएगा, ଯଦି ସେ ମୂଷା କାମୁଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାପାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବେ। या माँ का याद तो जरूर आएगा। ନହେଲେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସେ ମନେ ପକାଇବ। आज यीशु के नाम से ऐसे चूहों को भेज प्रभु, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସେପରି ମୂଷାକୁ ଆଜି ପଠାଅ ପ୍ରଭୁ। ताकि उनका औकात वो दिखाने पाए, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ସୁଯୋଗ ସେ ଦେଖାଇ ପାରୁ ପ୍ରଭୁ। ताकि वो जानने पाए मैं जो किया हूं वो गलत किया हूं। ସେ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ମୁଁ କରିବାଟା ଭୁଲ ବୋଲି। हालेलुया, ହାଲେଲୁୟା। जब तक पेट भरा था बाप का याद नहीं आया, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଟ ପୁରୁଥିଲା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପାଙ୍କୁ ମନେ ପଡିନଥିଲା। जब पेट खाली हुआ चूहा लोग काटने लगे, ଯେତେବେଳେ ପେଟ ଖାଲି ହେଇଗଲା ମୂଷା କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା तब बाप का याद आया। ସେତେବେଳେ ତାକୁ ବାପାଙ୍କୁ ମନେ ପଡିଲା। मन में सोचने लगा, ମନରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। मेरे घर में नौकर लोग रोटी चावल खाते हैं, ମୋର ଘରରେ ଅନେକ କାମ କରିବା ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, और मेरे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଖାଇବା ନିମନ୍ତେ କିଛି ନାହିଁ। भूखा मर रहा हूं। ମୁଁ ଭୋକରେ ମରୁଅଛି। हालेलुया, ହାଲେଲୁୟା, हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। उसका पेट का अंदर का चूहा उसको काटा तो उसको बाप का याद आया। ଯେତେବେଳେ ତାର ପେଟ ଭିତରେ ରହିଥିବା ମୂଷା କାମୁଡ଼ିଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବାପାକୁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପଡିଲା। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। अगल बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलिए, ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ହାତ ଧରି କୁହନ୍ତୁ, ऐसा चूहा तुझे भी काटना चाहिए। ସେମିତି ମୂଷା ତତେ ମଧ୍ୟ କାମୁଡ଼ିବାର ଅଛି ବୋଲି। बोलिए बोलिए बोलिए, କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ସେମିତି ମୂଷା ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ କାମୁଡୁ। ताकि आपको बाप का याद आएगा, ଯେହେତୁ ତୁମର ବାପାଙ୍କୁ ତତେ ମନେ ପଡିବ, माँ का याद आएगा, ମାଆକୁ ମନେ ପଡୁ। मैं जो किया
किया हूँ वो गलत किया हूँ। तुमे जहाँ करिछ ताहा भूल करिछ। हालेलुया। हालेलुया। अब ध्यान से सुनना। ध्यानपूर्वक सुनंतु। अब इसको बाप का याद आया वर्तमान बापांकु तांकु मने पड़िला और वहाँ बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है बाइबल रे एपरि लिखा जाय अछि तब ये अपने आप में आया। सेतेबेले से निजकु निजे आसिला। तो इसका मतलब क्या था? एहार अर्थ कोन थिला? अभी तक ये जो भी कर रहा था ये अपने आप में नहीं था। एबे पर्यंत से जहाँ करिछंती से निजकु निजे बोले से न थिले। वो क्रोनोस के अंश में था। से क्रोनोस रो अधीन रे थिले। वो मनुष्य का समय शैतान का समय के अधीन में था। से मनुष्य रो समय एवं शैतान रो समय रो अधीन रे थिले। शैतान इसके आंख में पट्टी लगा दिया। शैतान तार चक्षु रे बंधन कर दैथिले। शैतान इसके माइंड में ब्लॉक कर दिया। शैतान तार माइंड को ब्लॉक कर दैथिले। ना सोच पा रहा ना देख पा रहा है। से चिंता करि पारु नथिला कि देखि पारु नथिला। परमेश्वर ने डिवाइन प्लान इसके जीवन में किया। तांकर जीवन रे अनेक प्रकार योजना कले। हालेलुया। हालेलुया। अब ये अपने आप में आया। वर्तमान से निजकु निजे आसिले। या मैं ऐसा बोलूंगा ये पश्चाताप करने लगा। मु एमिते कहिबि से निजकु पश्चाताप कले। और पश्चाताप करते करते उसने एक बात को बोला। से पश्चाताप करू करू बापांकु कहिली मैं वापस अपने बाप के घर जाऊंगा। मु पुनर्तार मोर बापांक घर को फेरी जीवी। हालेलुया। हालेलुया। मेरे पीछे बोलिए मैं वापस अपने बाप के घर जाऊंगा। जिस दिन इस उड़ाऊ पुत्र ने ये डिसीजन लिया जो दिनो एही अपव्यय पुत्र तार जीवन रे एपरि निर्णय लेला ऑटोमेटिक थाइरोस मतलब परमेश्वर का सीजन इसके जीवन के अंदर काम करना प्रारंभ किया। ऑटोमेटिक तार जीवन रे परमेश्वर का कार्य आरंभ होने लागिला। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? जिस दिन आप अपने आप में आएंगे, जो दिनो निजको निजे आपण आसीबे, जिस दिन आप पश्चाताप करेंगे, जो दिनो आपण पश्चाताप करिबो, जिस दिन आप अपने पापों को मान लेंगे, जो दिनो आपण पाप को आपण मानी लेबे, क्रोनोस का सीजन खत्म हो जाएगा। क्रोनोस का सीजन समाप्त हो जाएगा। उसका सीजन आपके जीवन के अंदर आने के लिए तैयार होगा। जीवन तुम्हारे जीवन को आशीर्वाद लागिबो। हालेलुया। हालेलुया। चिल्ला के मेरे पीछे बोले ये जोर से बोलो ये थाइरोस का सीजन है। थाइरोस का सीजन है। परमेश्वर का सीजन है। परमेश्वर का सीजन है। मेरे जीवन के अंदर, मेरे जीवन के अंदर कोई तो चिल्ला के बोले हालेलुया। हालेलुया। अब ध्यान से सुनना। ध्यानपूर्वक सुनंतु। ये जब अपने आप में आया, जेतबेले से निजको निजे आसीले, अपना निर्णय को लिया इसने, अपना निर्णय को से नेले, मैं अपने बाप के घर जाऊंगा। मु मोर बापा को घर को चली जीवी। मेरे बाप के पैर में गिरूंगा। मोर बापा को पाद तले मैं माफी मांगूंगा। क्षमा मांगीबी। डैड मैं तेरे विरोध में पाप किया। बापा मु तुम विरुद्ध रे पाप करिया। स्वर्ग के विरोध में पाप किया। स्वर्ग के विरुद्ध रे पाप करिया। आप मैं इस लायक भी नहीं हूँ डैड। भगवान मु एपरी योग्य बधनु ही। एक नौकर के समान तू मेरे को रख ले। तुम घरे काम करिबा मूल्य परिवर्तन रखो। इसका भूख इसको वहां तक लेकर आया। तारो भूख ताकू से पर्यंत नहीं आसिला। हालेलुया। हालेलुया। अब ये थाइरोस का सीजन मतलब परमेश्वर का सीजन में कदम रखा। वर्तमान एक थाइरोस सीजन का परमेश्वर का सीजन रे पाद पकाइला। जिस दिन आप पश्चाताप में आएंगे, जो दिन आपण पश्चाताप को आसीबे, जिस दिन आप अपने आप में आएंगे, जो दिन निजको निजे आपण आसीबे, ऑटोमेटिक आप थाइरोस का सीजन में प्रवेश करेंगे। ऑटोमेटिक आपण से थाइरोस का जीवन में प्रवेश करिबो। हालेलुया। अब ध्यान से सुनना। ध्यानपूर्वक सुनंतु। बट क्रोनोस भी पीछा आसानी से नहीं छोड़ेगा। क्रोनोस मध्य से माने सहजरे छाड़िबो नहीं, क्योंकि उसको पता है एक जेतु ताकू जना अगर ये वापस मेरे पंजे से छूट के बाप के पंजे में जाएगा, जदि मो पाखरु एक छुटकारा पाई करी बापांक पाखकु जीवो, वापस फिर आएगा और मेरा ही बैंड बजाएगा। से पुनर्बार आसी पुनर्बार मोर पादरे पड़िबो। बैंड बजाए मोर बाजा बैंड बाजा से बजाइबो। मैं खत्म कर देता हूँ, वही अच्छा रहेगा। मेरे को साफ पता चल रहा है इन सबको भूख लग रहा है। मते जना पड़ुछि कि आपण माने समस्त को भूख लागु अछि। कुछ लोग वहीं बैठ के गाली दे रहे हैं और कितना देर बताएगा वो। केते लोक एई परि भाबुछंती गाली दउछंती और केते समय कहिबे। एक बड़ा गुड न्यूज बता रहा हूँ, आज खाना किसी को भी नहीं मिलेगा। गोटे शुभ समाद म कहउछि आज काहा को मते खाइबा को मिलबा नाही।
हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुनना, ध्यानपूर्वक शुणन्तु। इसने निर्णय लिया, पश्चाताप किया, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲା, ପଶ୍ଚାତାପ କଲା। काइरोस का सीजन इसके ऊपर काम करने के लिए तैयार है। କାଇରସ୍ का सीजन तार जीवन में कार्य କରିବାକୁ आरंभ कला। बट क्रोनोस भी अपना पूरा फोर्स लगा रहा है इसको रोकने के लिए। କିନ୍ତୁ କ୍ରୋନୋସ୍ ତାର पूरा फोर्स लगाଉଛି ତାକୁ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ। कई लोग बोलते हैं କେତେ ଲୋକ କହନ୍ତି दिया बुझने का समय जब आता है, ଯେତେବେଳେ ଦୀପ ଲିଭିବା ସମୟ ଆସିବ, ज्यादा शोर करेगा और तेजी से जलता है। ଆଉ ସେ ଅଧିକ ସେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେବ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଜଳିବ। तो समझ जाना, दिया बुझने का समय आ गया। ତାହାର ଅର୍ଥ ଜାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଲିଭିଯିବାର ସମୟ ଆସିଗଲା। अभी इस उड़ाऊ पुत्र के जीवन में क्रोनोस का जाने का समय आ गया। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପମୟ ପୁତ୍ରର ଜୀବନରୁ କ୍ରୋନୋସ୍ ଯିବାର ସମୟ ଆସିଗଲା। बट क्रोनोस अभी जबरदस्त तरीके से इसके ऊपर अटैक करने का प्रयास कर रहा है। କିନ୍ତୁ କ୍ରୋନୋସ୍ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଆଟାକ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଅଛି। पर इस उड़ाऊ पुत्र ने एक जबरदस्त निर्णय ले लिया, କିନ୍ତୁ ସେ ଅପମୟ ପୁତ୍ର ଜବରଦସ୍ତି ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲେ। मैं वापस अपने बाप के घर जाऊंगा। ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ମୋର ପିତାଙ୍କର ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି। आप ध्यान से सुनना, ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ अब ଶୁଣନ୍ତୁ। ये निकला अपने बाप के घर जाने के लिए। ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ବାହାରିଲା, वो पान ठेला वाला रास्ते में मिला। ଆଉ ସେ ପାନ ଦୋକାନ ପାଖରେ ସେ ମିଳିଲା। पान ठेले से पुकार रहा है, ଆଉ ସେ ପାନ ଠେଲାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ए छोटू, ହେ ଛୋଟ, कहाँ जा रहा है? କୋଉଠିକୁ ଯାଉଛୁ? छोटू चिल्ला के बोल रहा है, ଛୋଟ ଆୱାଜ କରି କହିଲେ, ए मैं अपने बाप के घर जा रहा हूँ। ମୁଁ ମୋର ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଅଛି। ये पान ठेला वाला बोल रहा है, ସେ ପାନ ଦୋକାନ ବାଲା କହିଲା, छोटू, ଛୋଟ, एक नया सिगरेट आया है, ଆରେ ବାବୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ସିଗାରେଟ ଆସିଛି, बहुत ज्यादा महंगा है। ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। छोटू बोल रहा है, सॉरी सर, ସେ ଛୋଟକୁ କହୁଛି, ସରି, मैं वापस अपने बाप के घर जा रहा ମୁଁ हूँ। ପୁନର୍ବାର ମୋର ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଉଅଛି। ये पान ठेला वाला बोल रहा है, ଏ ପାନ ଠେଲା ବାଲା କହୁଛନ୍ତି, छोटू, ଛୋଟୁ, अभी तक तू पैसा देके खरीदा है, ଏଥିପୂର୍ବେ ତୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିଥିଲୁ, पर आज मैं तेरे को फ्री में पिलाएगा। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତତେ ମୁଁ ଫ୍ରିରେ ଦେବି। छोटू बोलने लगा, ଛୋଟୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, सॉरी सर, ସରି ସାର୍, मैं अपने आप में आ गया, ମୁଁ ମୋ ନିଜ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆସିଗଲି। मैं पश्चाताप कर लिया, ମୁଁ ପଶ୍ଚାତାପ କରିଦେଲି। एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिया, ଗୋଟେ ମୁଁ ମଜବୁତ ଡିସିସନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲି। मैं वापस अपने बाप के पास जा ମୁଁ रहा हूँ। ପୁନର୍ବାର ମୋର ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। हालेलुया, ହାଲେଲୁୟା। पहला वाला हर्डल्स, पहला वाला बाधा को पार कर लिया। ଆଉ ସେ ପ୍ରଥମେ କରିଥିବା ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସେ ପାର ହୋଇଗଲେ। हालेलुया, ହାଲେଲୁୟା। जा रहा है, ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। वाइन शॉप वाला चिल्लाया, ଦୋକାନ ମଦ ଦୋକାନ ବାଲା ହଟା କରି କହୁଛି, ए छोटे, ଏ ସାନ ଛୋଟ, कितना दिन हो गया तू नहीं दिखा? ଆରେ କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲା ତୁ ଦେଖା ଯାଇ ନଥିଲୁ। छोटो इधर आ, ଏ ଛୋଟ ଇଆଡେ ଆସେ। एक नया वाला वाइन वाला बोतल आया है, ଆରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ୱାଇନ୍ ମଦ ବୋତଲ ଏବେ ନୂଆରେ ଆସିଛି। जबरदस्त है। ଜବରଦସ୍ତ ରେ। छोटू क्या बोल रहा है? ଛୋଟ କଣ କହୁଛି? सॉरी सर, ସରି ସାର୍, मैं अपने आप में आ गया, ଆଜ୍ଞା କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆସିଗଲି। मैं पश्चाताप वाला जीवन में आ गया। ମୁଁ ପଶ୍ଚାତାପର ଜୀବନକୁ ଆସିଗଲି। मैं जानता हूँ मैंने बहुत सारे गलती किया, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ମୁଁ କେତେ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କଲି। पर अब वापस मैं अपने बाप के पास जा रहा କିନ୍ତୁ हूँ। ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଫେରି ମୋର ବାପାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲି ଯାଉଅଛି। मैं वापस अपने बाप के पास जा रहा ମୁଁ हूँ। ପୁନର୍ବାର ମୋର ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଉଅଛି। वाइन शॉप वाला फिर चिल्लाया, ମଦ ଦୋକାନ ବାଲା ପୁନର୍ବାର ହଟା କରି କହୁଛନ୍ତି, छोटो, ଏ ଛୋଟ, आज तुझे पैसा देने की जरूरत नहीं है, ଆଜି ତତେ ଟଙ୍କା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଛୋଟ, फ्री में मैं तुझे पिलाएगा। ତତେ ମୁଁ ଫ୍ରିରେ ପିଆଇବି ରେ ବାବୁ। छोटू एक ही बात बोला, ଛୋଟ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, सॉरी सर, ସରି ଆଜ୍ଞା, अब मैं फिर से वो गलती नहीं ମୁଁ करूंगा। ଆଉ ପୁନର୍ବାର ସେ ଭୁଲ କରିବି ନାହିଁ। एक गलती करके मैं हर जगह से अलग हो गया, ଏଇ ଭୁଲ କରି ମୁଁ ସବୁ ଜାଗାରୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି। अभी वापस मैं अपने बाप के पास जाना चाह ମୁଁ रहा हूँ। ପୁନର୍ବାର ଫେରି ମୋର ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯାଉଅଛି। मैंने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिया। ମୁଁ ଏହିପରି ଡିସିସନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲି। एक साइड से क्रोनोस अपना पूरा प्रयास कर रहा था छोटू को रोकने के लिए, ଗୋଟେ ସାଇଡରୁ କ୍ରୋନୋସ୍ ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ଛୋଟକୁ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ। और दूसरा साइड से काइरोस भी परमेश्वर का समय भी पूरा प्रयास कर रहा था छोटू को क्रोनोस से निकालने के लिए। ଗୋଟେ ସାଇଡରୁ କାଇରସ୍ ମଧ୍ୟ
ସେଇ କ୍ରୋନୋସ ରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲା। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। 2 hurdles पार कर लिया छोटू ने। ସେଇ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନକୁ ସେ ପାର କରିଦେଲେ ଛୋଟ। लास्ट सबसे पावरफुल hurdles बचा हुआ था। ଆଉ ଶେଷରେ ପାୱାରଫୁଲ ଗୋଟେ ଶୈତାନ ଗୋଟେ ରହିଥିଲା। पता है क्यों बोल रहा मैं सबसे ज्यादा पावरफुल है? ଆଉ କଣ ସେ ସବୁଠାରୁ ପାୱାରଫୁଲ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? क्योंकि इसी एरिया में बाइबल में बहुत अच्छे अच्छे व्यक्ति लोग गिर गए। ଯେହେତୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବାଇବଲରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ। अगर आज हम मैं और आप इस पृथ्वी में देखेंगे, ଯଦି ମୁଁ ଏବଂ ଆପଣ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଯଦି ଦେଖିବା कई प्रभु के दास इस व्यभिचार में गिर गए। ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ବ୍ୟଭିଚାର ଖାଦ୍ୟରେ ପତନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। अभी छोटू आगे बढ़ रहा है, ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟୁ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି। वही वेश्यावृत्ति जगह से आवाज आने लगा। ସେ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି ସ୍ଥାନରୁ ଆବାଜ ଆସୁଛି। लड़की लोग सीटी बजा के छोटू को बुला रहे हैं। ଝିଅମାନେ ହୁଇସିଲ ମାରିକରି ଛୋଟୁକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। हे छोटू, ହେ ଛୋଟ कहाँ जा रहा है? କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? कई दिन से तू नहीं दिखा है। କେତେ ଦିନରୁ ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲୁ। छोटू पूरा इज्जत के साथ क्या बोल रहा पता है? ଛୋଟୁ ପୁରା ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସହିତ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? मैडम आई एम सॉरी मैडम। ମ୍ୟାଡାମ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। अब मैं वापस इधर नहीं आऊंगा मैडम। ମ୍ୟାଡାମ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଏଠିକୁ ଆଉ ଆସିବି ନାହିଁ। मैं इधर आकर स्वर्ग के विरोध में भी पाप किया, ମୁଁ ଏଠିକୁ ଆସିକରି ସ୍ୱର୍ଗର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ପାପ କରିଥିଲି। बाप के विरोध में भी मैं पाप ବାପାଙ୍କ किया। ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପାପ କଲି। और नो मोर डैमेज, और कोई डैमेज नहीं चाहिए। ଆଉ ମୋର ଜୀବନରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଥିଲା ସେହିପରି ଆମକୁ ମୋଟେ ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ଜୀବନରେ। वहां से लड़की लोग चिल्ला के उसको बोल रहे हैं, ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ଝିଅମାନେ ଆୱାଜ କରି କହୁଛନ୍ତି, छोटू ଛୋଟୁ सुन, आज तू पैसा भी नहीं देगा चलेगा। ଏବେ ଆଜି ତୁ ପଇସା ନଦେଲେ ବି ଚଳିବ ରେ ବାବୁ। आज फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं तेरे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। ଫ୍ରି ସହିତ ମୁଁ ତୋ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଅଛି। छोटू एक ही बात को बोला, ଛୋଟୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, मैडम आई एम सॉरी मैडम, ମ୍ୟାଡାମ ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। मैं अपने आप में आया, ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ହେଇ मैं ଆସିଗଲି। पश्चाताप वाला जीवन में ମୁଁ आया। ପଶ୍ଚାତାପର ଜୀବନକୁ ଆସିଗଲି। मैं ऑलरेडी कई जगह से मैंने पाप करके अपने आप को अलग कर ମୁଁ लिया। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପାପ କରି ନିଜକୁ ନିଜେ ମୁଁ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଥିଲି। आई एम सॉरी मैडम। ମତେ କ୍ଷମା କର ମ୍ୟାଡାମ। सबसे पावरफुल हैडल्स को इजीएस्ट वे में वो पार कर दिया। ସବୁଠାରୁ ପାୱାରଫୁଲ ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅତି ସହଜରେ ସେ ପାର କରି ଚାଲିଗଲେ। क्यों पता है? କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? जिस दिन उसने अपने आप में आया, ଯେଉଁଦିନ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆସିଗଲେ, जिस दिन वो पश्चाताप वाला जीवन में आया, ଯେଉଁଦିନ ସେ ପଶ୍ଚାତାପର ଜୀବନକୁ ଆସିଲେ, एक साइड से खाइरोस उसके लिए काम किया ଗୋଟେ ସାଇଡରୁ ଖାଇରସ କାମ କଲେ, और एक साइड से क्रोनोस भी काम कर ଆଉ रहा ଗୋଟେ था। ସାଇଡରୁ କ୍ରୋନୋସ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। खाइरोस परमेश्वर का समय शक्तिशाली समय है। ଆଉ ଖାଇରସ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମୟରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସମୟ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। अगर आप खाइरोस को पकड़ लेंगे, ଯଦି ଆପଣ ଖାଇରସକୁ ଧରିଦେବେ, मृत्यु से भी खाइरोस आपको उठा के लेके जाएगा। ମୃତ୍ୟୁରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇରସ ତୁମକୁ ଉଠାଇ କରି ନେଇଯିବେ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। 3 हेडर्स पार कर लिया। ଆଉ ତୃତୀୟ ଶୈତାନର ହାଇଡେନ୍ସ ମାନେ ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ସେ ପାର ହେଇଗଲେ। अभी वो अपने बाप के पास आ रहा है, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। पर जब वो जहाँ से गया वैसे नहीं आ रहा है। ସେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। आते समय राजकुमार के जैसा गया, ଗଲାବେଳେ ରାଜାର ପୁତ୍ର ହେଇକରି ପରିଗଲେ। अभी आते समय गरीब से भी गया बिता जीवन इसका हो गया। ଆସିବା ସମୟରେ ଗରିବ ଠାରୁ ଆହୁରି ହୀନମାନ ଜୀବନ ହେଇକା। लंबी लंबी बालें हैं, ତାର ଚୁଟି ସବୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଛି। शरीर में कपड़ा नहीं है, ଶରୀରରେ ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, पैर में चप्पल भी नहीं ତା है, ପାଖରେ ଚପଲ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। शरीर पूरा बदबू वाला दे रहा है। ଶରୀର ସବୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହଉଅଛି। वो अपने एरिया में आ रहा है, ସେ ତାର ଏରିଆରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। लोग देखकर उसको पहचान नहीं पाए। ଲୋକମାନେ ଦେଖିକରି ତାକୁ ଚିହ୍ନି बट ପାରୁନାହାନ୍ତି। बाइबल ऐसा बोलता है, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ଏପରି କହେ, आप उसको दूर से देखकर पहचान लिया। ବାପ ତାକୁ ଦୂରରୁ ଦେଖିକରି ଚିହ୍ନି ଦେଲା। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। लोग सामने से देखकर उसको पहचान नहीं पाए, ଲୋକମାନେ आमने सामने ଦେଖିକରି ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। बट बाइबल बोलता बाप दूर से देखकर उसको पहचान लिया। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ କହେ ବାପ ଦୂରରୁ ଦେଖି ଚିହ୍ନି ଦେଲେ। और बाइबल क्या बोलता है? କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ କଣ କହେ? बाप जब बेटा का परिस्थितियों को देखा, ଓ बाप ବାପା ଯେତେବେଳେ ପୁତ୍ରଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ, तरस से भर गया बोल के बाइबल बोलता है। ସେ କରୁଣା ଦୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ ବୋଲି କହେ।
आप सोच के देखिए थोड़े अपना चिंता कर देखंतु बेटा का परिस्थिति कितना दलितर हो गया होगा। से पुत्रर परिस्थिति केते शोचनीय है यार चिंता कर। बाप ये नहीं बोला ये मेरा नालायक बेटा मेरे से पैसा लेके गया, बापा एपरी मध्य कहिनांती जे एपरी बेकार पिला जे मोर पाखरु टंका सब धरि चाली गले, सारा धन दौलत ले गया, सब तार धन संपत्ति धरि चाली मेरा गले, पूरा इज्जत को बेइज्जत कर दिया। मोर इज्जत को सम्मान को असम्मान कर देला। तू आएगा तेरे को टप बहुत मारेगा। तू आसु मने तते मारिबी। जब अपना बेटा का परिस्थिति देखा, जेतबेले से पुत्रर परिस्थिति को देखिना, जाते समय कोट टाई सब पहन के निकला था तू, जीवा समय रे तू बूट शूट टाई भाई पिंदी करी जाइथिलु, और आते समय तू कैसा आया? किंतु आसिले बेले तू की प्रकार भाबे आसु भूखा नंगा तेरा शकल तू अपने आप को पहचान नहीं पा रहा। भूख होई करी नंगला है करी अवस्था है करी तू निजे को निजे तू जानी न पारला भले आसु। सबसे मजे की बात क्या है पता है? सबठारो मजा उत्तम विषय कोन मानी, जब बेटा को दूर से बाप ने देखा, जेतबेले तार पुत्र को बापा दूरରୁ देखुचंती, बाइबल ऐसा बताती है बाइबल एपरि कहे बाप ने अपने स्थान को छोड़कर बेटा के स्थान में आने के लिए तैयार हो गया। आउ जेतबेले बापा तार स्थान को छाड़ी करी पुत्रंकर निकट पाखकु से आसीबा पई प्रस्तुत होई गले। हालेलुया, हालेलुया। आज भी बाप तैयार है, अगर आप तैयार है तो वो अपने स्थान को छोड़कर आपके स्थान में आने के लिए। यदि आपण माने मध्य आज प्रस्तुत हेले पिता तांकर स्थान को छाड़ी करी आपण मानकर निकट को आसीबा पई से प्रस्तुत। आज से 2000 साल पहले यही काम मेरा यीशु मेरे और आपके लिए किया। आज ठारू 2000 वर्ष पूर्वे यीशु ख्रीष्ट आपण मान को निमित्त मो निमित्त एई परि कार्य से करले। वो बोलता है तू नहीं आएगा तो चलेगा, पर मैं तेरे लिए स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आएगा। से कहउचंती तुमे न आसिले नहीं किंतु तुम पई मु स्वर्ग छाड़ी करी तुम पाख को आसी जीबी। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलती है और बाइबल कहे बाप ने बेटा को दूर से देख लिया, बापा तांकर पुत्र को दूरରୁ देखिदेले, उसका परिस्थिति को देखकर वो तरस से भर गया। तार परिस्थिति को देखि करी दयारे विकलित होई गले। जूश बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, यहूदी बाइबल रे एपरि लिखा अछि बाप देखकर अपना छाती पीटने लगा। बापा से पुत्र को देखि करी विदर छाती में पिटिए बात लागे। उसको बर्दाश्त नहीं हुआ और उसे सहयोग कर पाले नहीं। मेरा ये बेटा गया कैसे, तभी ये कैसा वापस आ रहा है। पुओ गला बेले केमती ही जाइतिला आसिला बेले केमती आसो। उसने ये नहीं बोला तू मेरा पैसा बर्बाद कर दिया। से एपरि कहि